has a substantial body of work, including numerous books and research papers, demonstrating his contribution towards the field. His enormous contribution for the betterment of the field of history can never be summed up shortly. Hence, I would like to take up the work which has high relevance with the play. He has published numerous research papers, for example, Reconsidering Bhagat Singh, The Question of Violence, Sahit Ate Prathirodh, Jallianwala Bagh Ate Punjab Kavita. He has also delivered special lectures, making his personality even unique, such as lecture on the theme of Jallianwala Bagh Massacre of 1919, Government College Sunam on March 14, 2019. He also delivered an online lecture on Untold History of India, organized by Sage University, Bhopal on June 24, 2021. ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं. Today, on this majestic event, we present you a musical play about those moments of history that did not just change the course of the freedom struggle, but also opened our eyes, our wounds, and our will to rise. Gagan the Mama Bajio, written by the legendary Piyush Mishra. Let us unravel the story of one of the most influential freedom fighters, the man whose courage roared louder than the guns, a revolutionary, a poet, a patriot, whose heart burned with fire of freedom and whose voice still echoes in the heart of the nation. A man who was not just an icon, but a revolutionary patriot. At the age where all we could think about was having fun, he took up the courage and gave his life for our country. Bhagat Singh. But. Hold your horses, dear audience. I know you are really excited for the play, but let me please introduce Dr. Suman Bharti for a small message. So thank you so much, Komal, for explaining the play and everything very well. So I will not take much time. So I would like to welcome respected Principal Ma'am, our esteemed Chief Guest, Dr. Jasbir Singh, my dear students, friends, and guests for being here with us. Thank you so very much for sparing your precious time for this very profound play on the life and times of Bhagat Singh, Gagan the Mama Bajio. So we have gathered here to know and understand Bhagat Singh's revolutionary spirit. So सतलुज के उस पार की ज़मीन, जहाँ भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी के वो पल गुजारे हैं जिन्होंने उनको क्रांतिकारी होने की नींव प्रदान की. डीएवी स्कूल, नेशनल कॉलेज, और उनके आखिरी पल जिन्होंने उनकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को एटर्नल बना दिया, वर्ल्ड वाइड बना दिया, वो भी लाहौर में ही बीते. आई थिंक वी ऑल नो दैट इज सेंट्रल जेल लाहौर. सो फ्रॉम द सेम लैंड, लेट्स लिसन द वॉइसेस Sorry for the interruption. Okay? Okay. So these voices have come from Lyalpur and Lahore, and this association is Lyalpur Young Historians Club, and they have sent the message in favor of Bhagat Singh and his revolutionary spirit. And in this video we can see, though we are not able to screen this video, but in this video
There are two children also who have sung the praises of Bhagat Singh. So from this video we can feel the unity, we can feel the sameness. We can feel the sameness of revolutionary spirit that they also have. So that was the thing I was wanting to see you and feel, which we are not able to. Okay. So let's see the video. ਹੈਲੋ ਡੇਲੀਅਨਸ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ Light, please. ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। भगत सिंह का रास्ता, भगत सिंह का रास्ता। Thank you so much. So we are thankful to this Historians Club, Liable Young Historians Club, for sending this beautiful video and their wishes to us. So चलिए आइए जुड़ते हैं आज के नाटक गगन दमामा बाजियो। गगन दमामा बाजियो से भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी स्पिरिट से जो मिलती है भगत सिंह के कुछ आखिरी पलों से, उनके एक पत्र के थ्रू जो उन्होंने लिखा अपने भाई कुलतार सिंह को, जिसमें हमें उनकी ज़िंदगी एक रेवोल्यूशनरी नगाड़े की तरह बोलती है, पुकारती है और जो हमारे कानों में बसना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। हर वक्त हर पल हमें रेवोल्यूशनरी होने बनने का एहसास देना चाहती है। Yes, through this letter he had passed on the baton of revolution to his younger generation. He is asking us all and the youth to shoulder, to march ahead and carry on his mission eternally. So let's listen to Bhagat Singh through this letter and the Nagada. I request Suraj sir to read the letter for us. Thank you so much everyone. And here on we can see the play. मार्च 1931 की तारीख थी। भगत सिंह की शहादत के 20 दिन पहले उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार को एक चिट्ठी लिखी थी। सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना, सेहत का ध्यान रखना, हौसला रखना और क्या करना। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या होगा। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चर्ख का क्यों गिला करें। सारा जहां अद सही, आओ मुकाबला करें। कोई गम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हिम्मत से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह।
मैंने पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए। कुछ याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला, इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास एवं तारीखों के गुलाम नहीं। इतिहास को लोग अक्सर किताबों पर छपी बातों के जरिए जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को जानने के लिए तो स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक ठक ठक भी काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आ रहा और दूसरा अब शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि जरूरत से ज्यादा बोझ डालकर सोच सकूं। तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है और बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो मरकर भी इस बात का पता ना लगा सके कि ये तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती है और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है। कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई हुई उन शमों में नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, पर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद है। कौन सा? कि वतन की आबरू कपास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। कौन हो तुम? ये एक गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरगंज दिल्ली अस्पताल की इस इमारत में खड़े होकर मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से 40 बरस पहले जब्त कर दिया गया था, लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं दिल्ली में था, मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं कानपुर में था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी हुई थी। जिस दिन बाप रोया था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था और जिस दिन लाहौर के रायपुर जिले के गांव पंगा में एक माँ अपनी कटी हुई फसल को देखकर बोली थी, अपने बच्चों को मांस खाऊंगी, अगर इन सब फसल को मुंह से लगाया तो। ये जमीन हमारी, ये मिट्टी हमारी और ये खेत हमारे। तुमने जन्माई इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता तो आज मेरे देश की लाखों करोड़ों माएं आंखों में सुर्खी पोते उस वाहेगुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें टिकाकर बैठी होती। यहाँ कटी है हमारी फसलें, यहाँ उजड़े हैं हमारे खेत, यहाँ वीरान हुई है हमारी बैसाखी। इस जले हमारे बाग में जिसकी मिट्टी को आसमां से बच्चों के दूध ने रिस रिस कर रख दिया है।
गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे हवाले, फेंकते हैं कि नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ इन्हें और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की विसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। और भगवती भाई कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ। क्लास में नहीं आए? क्लास में गए थे, 15 मिनट लेट थे, मैम चले गए। अरे यार, मिस कर दिया आपने बहुत। पढ़ाई भी जरूरी है। ये लाहौर नेशनल कॉलेज है। 1921 के जनते हुए हिंदुस्तान में यहाँ क्या करने आए हो? जी वही जो आप करने आए हैं, पढ़ाई। पढ़ाई? जुबान बहुत चलती है तेरी। हम सीनियर रहते थे, चल पढ़ाई दे। हुकुम कीजिए। मंगल पांडे के बाप का नाम बता। पता नहीं। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बताओ। वो भी नहीं पता। हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम के सबसे घड़िया आदमी का नाम बताओ। जनरल डायर। जनरल डायर। ऐसे क्या? हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम के सबसे महान आदमी का नाम बता। चलिए छोड़िए। तो कुछ बोल रहा था? मैं महात्मा गांधी का नाम बोलने वाला था। महात्मा गांधी? बंदा तो सही है, खूब जमगे मारी। मेरा नाम सुखदेव है, सुखदेव थापर। मेरा नाम भगत सिंह संधू। और ये है जय गोपाल, और वो हमारे सिंगर भगवती भाई। भगवती चरण बोरा। कहाँ से हो? मैं लालपुर से। यार ये बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, सामने की और 4-5 थे। चोट काफी आई है? हाँ, लगी तो है। आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए बोला तो पेपर क्या, मैं तो सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे चलते रहने दो। उल्लू का पट्टा है वो। अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद हुए 1 साल होने को आ रहा है। अब भला सरकारी अस्पताल जाने में से क्या दिक्कत है? और तुम सब लोग वहाँ मौजूद थे, अंधे होकर लगते हो क्या जब वो वहाँ अकेला पेट रहा था? वैन तो हमारा भी था जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे पर तू मिला ही। फिर शाम को इलाजा जी ने मीटिंग बुला ली। बरसों बड़े चौक पे वायसराय का पुतला जलाया जाता था, जुलूस भी निकला, इस वजह से हम लोग आ नहीं पाए। बाद में पता चला वहाँ झगड़ा हो गया। तू कहाँ चला गया भगत? यार मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे अचानक जाना पड़ गया और वापसी की सवारी भी नहीं मिली। मैं सुबह ही आया हूँ, लेकिन तुम सब लोग खबर तो रखते, उनको बाद में देखते हम। खबर तो ले ली है उनकी, सुना है ऑफिसर्स लेन के साबों के लौंडे हैं, लेकिन अब तो चाकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने एफआईआर लिखवा दी है उल्टे उसके खिलाफ। अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब इससे आगे झगड़ा क्या ही बढ़ेगा? लेकिन ये मुइन है कहाँ? भगवती भाई कहाँ है मुइन? मिला तो था लेकिन एकदम ही गायब हो गया। जयकमल पांडा उसको क्या हो गया? मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूं और मुझे एक ही लाइन में उसका जवाब चाहिए। उन लोगों के नाम। जेम क्रेन, स्टीफन क्रेन और बाकी तो मैं नहीं जानता। ये तो वो डेविड ग्रीन के लौंडे तो नहीं है? हाँ, ठीक है सुखदेव, थाने में एफआईआर में बाकियों के नाम भी दर्ज होंगे। तो हाफ 6 काफी है, हाथ पैर, और बाकी रात को दारू पी के आएंगे टिपर मीनार के पास, मौका देखते ही वहां बजा डालेंगे। समझ गए? और ध्यान रहे इनकी गाड़ी का एक कांच भी सलामत ना रहे, उन पर बहुत नाज है। चल सुखदेव। लेकिन एक बार पूरी बात तो सुन ले यार, क्या पता गलती इसी की रही हो। मेरी गलती? मेरी गलती? खेरू को बचाया मेरी गलती थी, उसकी बीवी और बहन को बचाया
वो भी मेरी गलती थी। साला यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है। वाह, चौड़े में इतना दम करा था। अरे तो मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात तो दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद है तो क्या गलती हमेशा उन्हीं की होगी? हाँ, गलती हमेशा उन्हीं की होगी। अब यूं हम कुछ नहीं कह सकते भगवती भाई। यूं हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। मोइन, क्या बात हुई थी? यशपाल ने बोला था जबलपुर फिल्म चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले लिए, इन सबका खड़ा इंतजार कर रहा था कि अंदर से शोर सुनाई दिया। अंदर भागा तो मालूम हुआ वो चारों खेरू को जमीन पर पटक कर लातों और घूसों से मार रहे थे। पास ही में उसकी बीवी और बहन खड़े थे, और उसकी बीवी के हाथ में उनका छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। और एक खीरू वही तांगे वाला? हाँ वही, और मारते हुए इंग्लिश में इतनी गंदी बकवास के जा रहे थे कि हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे, काले कुत्तों। लेना पड़ाना वापस तुम्हारे बाप गांधी को हमारे कंधे से कंधा बढ़ाकर चलोगे। उसके बाद क्या? उसके बाद साले लंबू ने खेरू पर अपना कुत्ता जोड़ दिया, उसने उसके पूरा हाथ जोड़ दिया। और फिर जब उनमें से उसकी बहन की तरफ बिच गया था, वो आगे बढ़ा, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं आगे आ गया। खेरू ने कितनी बार नेशनल कॉलेज के छात्रों को टांगे में लिप दी होगी, फिर वो उसे चोट मुझ पर टूट पड़े, नाक पे लिटा के ठोकरें मारी। मैं अकेला पड़ गया था यार, इनमें से कोई भी नहीं था। फिर जब पुलिस आई, उल्टा मुझ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। फिर जब अब आए तब कहीं जाके मुझे छोड़ा। लेकिन मोइन, पूरी बात तो बता, क्या हुई थी? खेरू अंधेरे में गलती से एक क्लास में घुस गया था, उसका घुटना टकरा गया वो उनसे, बस टूट पड़े। अब बोल, ऐसे इसके औलाद, गलती किसकी थी? हाँ, इस हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आजकल गलती का हिसाब किताब बहुत रख रहा है तू। चल बे, हो गया तेरा, पानी पिलाओ इसको। अब जो आगे होगा वो हम सब देख लेंगे, ये मुंह भी सुनने की जरूरत नहीं है। अरे मोहित, ये फिल्म की बात में रहेगी, क्या कहते हो? हो जाए? हो जाए। मगर ये फिल्म है कौन सी? अरे फिक्र मत कर, ये तेरी चैपलिन या गार्बुक नहीं है, ये है तेरी राजा हरीशचंद्र। बननी चाहिए यार, बननी चाहिए। इंडियन माइथोलॉजी पूरा और बननी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे देवता पे दिखलाएं आसब, हम पे दिखलाएं विस्की। वो शिकायत कर देगा लाला जी से। हाँ, लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी। ये मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल नहीं गए भगवती भाई? हाँ, कॉलेज के बोर्ड पे बस एक नोटिस लगने की देर है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अरे येलो पैम्फलेट पढ़ा किसने? ये येलो पैम्फलेट? बोला ये क्या है? कुछ नहीं भाई, वो सन्याल बाबू ने कुछ पुराने बिखरे क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसका टारगेट है आजाद भारत, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पे छपा है उसे कहा जाता है पीला पर्चा या येलो पैम्फलेट। वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। क्यों नहीं बन सकता? अगर शादी ना हो तो क्या घर में शराबी छुपा के ना रखे? यार मगर तुम कुछ भी कहो, मुझे तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। कभी ये होम रूल सोसाइटी, तो कभी ये गदर पार्टी रूल, और अभी अच्छा इससे होना जाना क्या है? और किससे होना जाना है? भाई भगत, तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है कि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है? ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस ये नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दे। वो नॉन कॉपरेशन वाली बात ही तो करते हैं। अब वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। अब वहाँ दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है। हम में से 2500 लोग उसके मारे गए हैं। कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ेगा ही ना यार। पाया क्या? क्या पाया? ठीक है, कुछ नहीं पाया, लेकिन उसमें भी जनता का ही दोष है। क्या दोष है? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई। उस बंदे ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए। भीड़ ने गुस्से में आके थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस वाले जलकर मर गए। बदले में जनता का दोष बतलाते हुए मामला वापस ले लिया गया। तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? तो क्या उसके दर पे माथा टेक के आगे बढ़ जाते? कांग्रेस की साहित्य पढ़ कर आया क्या मार्कंड त्रिवेदी? फिजूल इल्जाम मत लगाओ, मैं भी उस मूवमेंट में कूदा था तुम लोगों के साथ। हाँ, बाप ICS खुद करने को कुछ नहीं है तो क्रांति करते हो। तू तहजीब से बात कर सुखदेव, मैं आज भी कह रहा हूँ, इस
गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात है। हाँ, बात तो है। जिसके लिए मुल्क के 12-12, 13-13 साल के बच्चे इस कच्ची उम्र में सड़कों पर उतर पड़ते हैं। अब गांधी जी ने कहा इन कोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए। अपनी कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार थे, अपने बस्ते नालों में बैठकर बच्चे तैयार थे। मैंने भी उस वक्त अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चियां बांटी थी, तख्तियां उठाई थी। क्या जोश था सब में उस वक्त कि आंदोलन करेंगे, आजादी लाएंगे। लेकिन फिर एक सुबह पता क्या होता है, गांधी जी वो मूवमेंट वापस ले लेते हैं। सब बच्चे ताक रहे थे मुंह बाय आसमान की तरफ कि अब कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कोई सुनने वाला नहीं था हमें। सरकारी स्कूलों के गेट हमारे लिए बंद थे, कॉलेजों में हमारा दाखिला तक मुमकिन नहीं था। तुझे याद है वो दिन? हाँ याद है, मगर मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था? नारिकली के होटल पर बिलबुला तुम्हें कौन आएगा? अब मेरा क्या होगा? मैं बाबू जान से मार दूंगा, मैं कहाँ पढ़ूंगा? तहजीब से बात कर सुखदेव। चूल्हे टीवी पड़ गई थी। इस कमरे में उस दिन 15 लड़के थे। ये तो शुक्र मना लाला लाजपत राय जी ने हमारे लिए ये कॉलेज खुलवा दिया। ये तो दर ठोकर खड़ा होता तू। अरे दर की ठोकरें खाई मेरी जूती हूँ। 50 लोग अपने घर में ऐसी नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? नौकरी देगा हमें? ऐसा क्यों औलाद एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो? उन मासूम लोगों की भावना के साथ खेलते हो। चोरी चोरा के मरे हुए सिपाहियों को सिर्फ मालूम है, मगर उनके नहीं जो उनकी गोली से मारे गए थे 3 साल पहले चले वाले काटने में भूल गया। तो उन 50 लोगों को इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि उसमें तेरे कोई भाई बाप या बहन नहीं थी। This is too much भगवती भाई। Nothing is too much। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मिस्टर गांधी कि आपने इस देश के बच्चों के लिए आखिर आगे क्या रास्ता छोड़ा? संभाल चट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे। रोक दे उमड़ती रुत को आँख जो दिखाए रे, सरकटी उम्मीदों के पल याद में सजाए रे। देख देती है वो कसमें अब मचा दे हाय रे, फिर भले ही सारी पगड़ी खून में नहाए रे, फिर भले ही सारी पगड़ी खून में नहाए रे। पगड़ी संभाल जट्टा, 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 पगड़ी संभाल जट्टा। ओए बाबूजी, बाबूजी। अबे वो कहाँ है? जी कौन? बताऊं कौन? जी वो तो यहाँ नहीं है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर है कहाँ वो? जी वो तो यहाँ पिछले 2 दिन से नहीं आया। वो तो क्या लाहौर निकल गया उसे, या गोरे खा गए उसे? घर घर में वैसाखी मन रही है कि वो हरामजादा अपनी माँ और दादी को भूखा छोड़ के पता नहीं कहाँ वारागर्दी करता फिर रहा है। एक बार मिल जाने दो मुझे उसे, तो मैं बताता हूँ। और तुमने समझाया उसे? वो मैंने कहा था तुझे। जी समझाया था और वो समझा नहीं। फिर वो मुझे ऐसे कह रहा था कि लड़की पढ़ी लिखी। अरे पढ़ी लिखी लड़की क्या वो फ्रेम में से जाके रखेगा? तुम सबको सालों इस नेशनल कॉलेज में बिगाड़ा है, तुम और वो तुम्हारे गुरु लोग। अबे क्या लाला जी ने शादी नहीं की और क्या बिगाड़ा तेरा अभी तक कुआरा है? अबे 4 दिन बाद लाहौर की गलियों में लौंडियों के लहंगे सुनते हुए मिलोगे। पर ठीक है ना, साला सरदार का लौंडा है ना, तो लक्ष्मी बात नहीं समझेगा। एक बार मिल जाने दो मुझे उसे, तुम बताता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए,
आपको परेशान कर दिया। देख पा रहा हूं कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, आज उसको उसके वार्ड का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं बची, और जब थी तब वो पूरी हुई। तब उसका पूरा होना ही मेरा मकसद था, उद्देश्य था। मकसद आप लोगों का क्या था? वो दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना। मुझे आज भी याद है 1924 के दिसंबर की वो तूफानी रात थी। गणेश शंकर विद्यालय के प्रताप प्रेस के तलगर में वो खड़ा था। भगत सिंह जी, क्यों आना चाहते हो एचआरए में? जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह बतलाओ। वजह तो सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेजी छोकरों को पीट देने को तुम लड़ना बोलते हो? वो तो शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी होती है। लड़ तो पिछले 100 सालों से रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिली आजादी। शायद आपके लड़ने के तरीके में गलती रह गई होगी। इस गलती को तुम ठीक करने आए हो। क्यों नहीं, हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। इस बार मैं आया हूँ। शादी में शहीद होने से बचकर भागे हो बरखुरदार। शहीद वहाँ भी होना है और यहाँ भी। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। बात तो सही है, और मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे पता? आप कभी मरे हैं क्या? मरने का जितना तजुर्बा आपको है उतना मुझे भी है, तो हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म के घाव देखते हो, ये इस बात का सबूत है। जिस्म के घाव कभी किसी आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर वो चाहे अपना हो या सामने वाले का। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। और शायद हिंदुस्तान के स्वाधीनता के 100 साल के इतिहास में यही गलती रह गई है। और बात आपने आज़ादी की, तो मैं आपको बतला दूं कि हमारे देश को सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, हमें ये आज़ादी किस प्रकार मिलती है ये भी जरूरी है। अगर ये आज़ादी हमें गलत तरीके से मिल गई तो ये कहने में बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे पर भूरे आकर हम पर राज करेंगे। काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी। अमीर तो अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में ऐसा नंगा नाच शुरू होगा कि आने वाली सरकार और उनकी नस्लों की कमर टूट जाएगी उसे बुझाते बुझाते। स्वागत है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। मेरा नाम भगत सिंह। मैं अशफाक उल्ला खान। लाहिड़ी, मनमथनाथ, राम दुलारे, ऐसे कई ही महान शख्स हमारे इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। ये शिव वर्मा, इसका बदन देखते हो, इसे एचआरए की दिया सिलाई कहते हैं। ये जयदेव कपूर, इसे कुश्ती में लाना पड़ेगा। और वो है एचआरए का खास बंगाली बटुकेश्वर दत्त। बालोवाशी दादा। अरे जी पूछ रहा है कैसे हो? जी बेहतर। जानते हो एक बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? जी क्या फर्क होता है? कुछ फर्क नहीं होता। जब तक इन दोनों को इनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा तब तक ये बूटी लाने के लिए उठेंगे नहीं। मगर एक बार उठ गए तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ उठा लाएंगे। वैसे ये हनुमान जी के नाम पर याद आया, अपना पंडित कहाँ गया? वो भूत है चारे का। जंजीर और जिंदगी इसे कभी बांध नहीं पाई और ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित भगत सिंह से मिलेगा? कसरत के वक्त नहीं। इनका नाम क्या है? पंडित चंद्रशेखर आजाद। और फिर 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली।
उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार HRA के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। अजी सुनते हो, काकोरी स्टेशन पर खजाना लूटा गया है। अपने भगत भी उस दिन वहीं था। No, no, no! Take the security! Close all the security shops up on Lucknow! Like Meerut and Banaras! Recruit new agents in Delhi, Agra, Kuala and Junction. Someone's going to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republic Association. Grab the style! Call the special force! I want to see CID soldiers in each and every street of Kanpur! What? What? और फिर एक अनचाही घटना घटी। पूरी HRA पकड़ी गई पंडित जी और मुकंदी लाल को छोड़कर। भगत सिंह ने अपने गांव में जाकर अपनी खुद की डेयरी शुरू की। वर्ष एक गिरफ्तारी हुई और दम निकल गई साले की। ओ वो ही सुन्नी सोचता है इसके दरख्त में 2 रुपए के पूरे लाहौर को दूध पिला रहा है। पर पंडित जी, वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई थी। तो क्रांति में क्या अपने पिताजी से पूछ के हुआ था? साला 85 वेद रहस्य ले जाके चला गया जाने के, इसलिए कि वो वहां जाके दूध बेचे, शादी करे और क्या बच्चे पैदा करके पूरी आबादी में पहुंच बढ़ाए। साले कीड़े मकोड़े फैला के चले गए दोनों बेचारे में। वो क्या नाम है तुम्हारा? 4 फुट का अमेरिकी नौटंकी बाज जी, चार्ली चैपलिन। अब क्या हम उसकी फिल्में देख देख के फिल्म दिखाएंगे? बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकालो अपना। वो सुखदेव बोल रहा था। अच्छा सुनो, ये बम दशहरे में रखा जा रहा है ना? हुकूमत का काम है पंडित जी, उनको बहाना चाहिए था भगत को पकड़ने का, उस पे मोटा केस करने का। उनको काकोरी के नाम चाहिए थे बचे हुए, मगर उसने बताया कुछ नहीं पंडित जी। एहसान किया मेरे ऊपर? नहीं एहसान करा। उन्हें बहुत मार लगी है पंडित जी। सहन करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, नहीं तो अपनी बीवी के नाड़े गिरा बांधकर बैठ जाओ। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। बस फैसला हो गया। राजगुरु जी पंडित जी। तुम आज शाम की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो, उसको समझा के देख लेना, मानता है तो ठीक, वरना बम्बूलाट ले जाओ, काम आएगी। पर पंडित जी, अगर आप एक बार खुद बात। बस फैसला हो गया। क्या कभी इतिहास मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए भाई बम्बूला भेज दिए थे? और भाई बम्बूलाट जी तो मुझे भरे हो जाए, देखते ही फाड़ डालेंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, आखिर तुम लोगों ने किया ही क्यों था? एक बात बता, तेरा नाम राजगुरु है ना? बात तू राजा के भांडो जैसी करता है। मेरी 60,000 रुपये की जमानत हुई थी, और वो भी दुनी चंद और दौलत राम जैसी हस्तियों द्वारा हुई। अब अगर मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत की 6 महीने तक, तो उनकी इज्जत कहाँ जाएगी? और आगे से कोई पकड़ा गया तो जमानती कौन देगा? पैसे के नाम तो पार्टी पैसे ही खाली है। अरे नहीं सुखदेव, फिर कोई टाका ही मारना पड़ता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यशपाल को लेकर मैंने असेंबली में केस उठवा दिया है। कुछ ही दिनों में जमानत का पैसा वापस और इनकलाब फिर से शुरू होगा। मेरा सवाल तो वही का वही रहा, आखिर तुम लोगों ने ऐसा किया ही क्यों था? अरे मेरे राज दुलारे, पेट में कहीं दूध जा रहा था, लेकिन दिमाग तो खाली था, तो सोचा कुछ कर लेते हैं। चलो ठीक है। पंडित जी का ना खत आया और इसमें लिखा है, अब फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। इस मीटिंग में लेकर सभी दलों में बहुत उत्साह है और इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। और आशा करता हूँ ये मीटिंग आने वाले मूवमेंट में एक नई करवट साबित होगी। तुम्हारा पंडित। और सुखदेव, अगली बार सोशलिज्म नाम के शब्द का खुलासा करना। और अगली बार रूसी क्रांति में कोई किताब मिले तो वो भी लेते हैं ना, मगर ध्यान रहे हिंदी में।
मुल्क के पास देने के लिए विचारधारा थी, उसी की वजह से वहां पर क्रांति आई है। और दूसरी क्रांति इस दशक की नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति रही है। क्या बंगाल ने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा? क्या पंजाब ने क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा? तो फिर हम क्यों हिचकें एक ऐसी चीज को अपनाने में जो एक अप्लाइड साइंस के तौर पर उभर कर आ रही है? लेकिन मिस्टर सिंह, इस सोशलिज्म नाम की साइंस में ना धर्म की कोई जगह नहीं है, जो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की परंपरा तो भूख है, हमारे देश की परंपरा गरीबी है, और हम इसी परंपरा को अपने सीने से लगा लेकर चलना चाहते हैं। और धर्म तो इंसानी कौम के लिए एक अफीम है जो उसे आदि बना सकती है, लेकिन उसके एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। आप ये कैसे कह सकते हैं? उससे व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, उससे व्यक्ति का खौफ बढ़ता है, उससे व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आती है। क्या फायदा उस सारी शक्ति का जो उसके एक वक्त की भूख न मिटा सके? आप भूख को इतना ऊंचा स्थान कैसे दे सकते हैं? देते तो आप भी हैं, और मैं बोल देता हूँ, आप तो बोलते भी नहीं है। हमारा इतिहास गवाह है, धर्म गुरु ने इनकलाब ला के दिखाया है। हमारा छोड़िए, दुनिया के इतिहास में से भी उदाहरण दिखा दीजिए। क्यों? कबीर का मकसद इंसान और भगवान को मिलवाने का नहीं था, बल्कि दो हाड़ मांस के इंसानों की दूरी को खत्म करना था। हजरत साहब, जीसस क्राइस्ट यकीनन वो बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं जो लोगों को साथ लेकर चले। इस्लाम और ईसाईयत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, यकीनन वो उन्हीं का सोचा हुआ है। लेकिन वो आज अपने कर्मों से ना इतिहास से उठकर माइथोलॉजी में चले गए हैं। उसके लिए जिम्मेदार तो ये 2000 सालों का वक्फा है, जब हम उन्हें साबुन केयर कैलेंडर में देखकर जानने लगे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि कल को आपको हिंदुस्तान के आंदोलन का कर्णधार बना दे, तो 500 साल बाद भी लोग आपको याद रखेंगे कि घोष बाबू तो 8 सितंबर 1928 की प्रोसेस कोटला मीटिंग में हवा में उड़ कर आए थे। You people are impossible। तुम लोगों से बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। जब बात में ठोक के बजाय तर्क नहीं होता ना, तो बात करने का फायदा नहीं होता घोष बाबू। लेकिन आप ये सोशलिज्म की व्यावहारिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के लिए आज़ादी जरूरी नहीं है, आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है। उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो वो यही है, वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा जी। इस HRA का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजादी क्यों नहीं? वो व्यक्ति ना अंग्रेजी की एक लाइन तक नहीं बोल सकता। भाई, कमांडर एक प्रेरणा है, उसका लिटरेट होना बहुत जरूरी है। देखिए, लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात होती है, भले ही वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई रही हो या जिंदगी के तजुर्बे। लेकिन वो यहाँ मीटिंग तक में नहीं आए हैं। इसका जवाब शिव वर्मा देंगे। अरे पटना गए हैं, कल सुबह मिले थे कसरत करते, मीटिंग की बात करी तो कहने लगे पहली गलती ये कर रहे हो कि कसरत करते हुए मुझसे बात कर रहे हो, और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों में ध्यान नहीं देते, वरना मालूम होता कि आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ और मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया तो बोले कि या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई बम्बुलाट जी, किसी चीज से जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। लेकिन ये भाई बम्बुलाट जी है क्या? 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। चलो फिर तय रहा, आज से HRA का नाम बदलकर HSRA होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हमारा पहला मकसद 30 अक्टूबर, जब साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है, जहां जहां से वो गुजरेगा उसका वहां खड़ा विरोध करना है। और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता, उसके जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है। गर्म स्याही से लिखी शेरों
आजकल सरदार जी उर्दू बोल रहे हैं। क्यों सत श्री अकाल नहीं बोला जाता? ग्रंथी जी तक बात पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। जी सरदार जी हम कहाँ, सरदार जी तो अंदर हैं। लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे रुकिए रुकिए, ये भी कोई जाने की उम्र है? आप तो जरा बैठिए, दूध छाछ पीजिए, सेहत बनाइए। कल को जमाना हम पर तोहमत लगाएगा ना कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई। खातिर जमा रखिए अपनी खातिर तवज्जो, आगे काम आएगी। और चाची जी हैं क्या अंदर? चाची जी को ही ढूंढ रहे हो या? सावन के अंधे को हरे ही हरे नजर आता है। आजकल कोई और बात नहीं सोचती क्या? जी बातें तो बहुत सोचती हैं, पर क्या करें, ये कमबख्त शहरी ऐसे है कि सामने आते ही सारी बातें गोल। रोज ना गुरुद्वारे जाया कीजिए, गुरबानी सुना कीजिए, मत्था टेका कीजिए और लंगर छका कीजिए। वाहेगुरु जी की कृपा रही तो आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी कुर्बानी से दिमाग का इलाज तो हो जाएगा, मगर इस दिल का क्या? महान जी से कहकर झाड़ा लगवा दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और चाची जी से कहिएगा कि उनको चाई जी ने बुलाया है। अब हम चलते हैं, सत श्री अकाल। अरे रुकिए रुकिए, आपके लिए कोई और भी आ रहा है। ओ विद्यावती जी आई। ये कृपान भी ले जानी है क्या? अरे और नहीं तो, अरे बिना कृपाण के सरदार तो ऐसे जैसे बिना ताज के राजा। ये तेरी नामक औलाद है क्या? इसने सिखाने के बावजूद भी केश कटा दिए। अरे क्रांतिकारी कहते हैं लाला जी को, शेर बड्डा हो जाने पर भी शेर ही रहता है। क्या शान से आज जुलूस मोर्ची कबाल सवारी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे आपका गोला। ये सुखदेव और भगवती वगैरह भी तो चल रहे हैं और तूने हराम खोर के नाम मत लिया कर मेरे सामने। ये सारे के सारे ना लाला लाजपत राय की पैर की जूती भी नहीं है। लेकिन अपना भगत तो कुछ और ही कह रहा था। और मैं कुछ नहीं कह रहा। इस 45 साल के सरदार की बात का तो यकीन नहीं है, और उस 20 साल के लौंडे का है। और एक उसने उस अच्छी लड़की को और परेशान कर रखा है। अरे आप उस लड़के को समझा क्यों नहीं देते कि वो कहीं और शादी कर ले? हाँ हाँ, खुद की औलाद को तो समझा नहीं पाए तो दूसरी से बात करें। अरे मुझे तो ये नई पीढ़ी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है। कल तक तो वो उन्हीं लाला जी को गाली दे रहे थे, और आज उन्हीं लाला जी को वो बाप समान पुलिस से बचाते हुए गेरे साथ चल रहे हैं। ये भगत तो कह रहा था ये सारा मोर्चा उसकी नौजवान भारत सभा संभाल रही है। अरे हाँ हाँ, संभाल रखा है। आखिर है तो उसी अजीत सिंह का भतीजा ना। पर ये जुलूस मोर्चे निकालते रहे तो ठीक है, कम से कम उसे अपने चाचा की तरह ये मुल्क को नहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। आज 20 साल हो गए इसे फरार हुए। जवान बीवी छोड़कर गया था, उसकी भी इंतजार करते करते उम्र निकल गई। भगवान का सुबह उसके आने का टाइम नोट करेंगे, और उसकी शक्ल कौन पहचानता है? जय गोपाल, जय गोपाल। वो मोटरसाइकिल पर आता है, ये भी कॉलेज के सामने से। मैं देखते इशारा कर दूंगा। राजगुरु, तुम पिस्तौल के साथ तैयार रहना। पहली गोली भगत और मैं चलाएंगे, उसके बाद अगर हमारा किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। पंडित जी कहाँ पर है? पंडित जी। जय गोपाल एक गलत इशारा करते हैं पंडित जी। कोर्ट की जगह सैंडर्स मारा गया। यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता, याद रखो। गोलियां उसी सॉन्डर्स ने बरसाई थी। अजी सुनते हो, अपने भगत पर खून का इल्जाम लग गया है। खून का इल्जाम इन पर? मगर किसके खून का? यही सवाल मेरा था, यही सवाल मेरा था। खून का इल्जाम उस पर, लेकिन किसके खून का? उस सॉन्डर्स का खून तो सबको याद है। इतिहास ने उसे अपने पन्नों में डंके बजाकर जगा दी। उस इल्जाम ने उसे युग पुरुष बना दिया। कल को किनारी बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सच से कल कहा तो शर्मा गई। उसकी माँ ने भी आगे से कहा कि शर्माने से काम नहीं चलेगा, तुझे आने वाली होली जेट डेवलप के बीच में मनानी है। ये होना ही था सुखदेव, ये होना ही था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा उससे हंसी मजाक की बात मत किया कर, मेरी जमानत के दिन में महंगे पड़ जाएंगे। भगत
तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि 8 अप्रैल को असेंबली बम फेंकने में नहीं जाऊंगा। सरदार भगत सिंह को एहसास हुआ कि उनके इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक के लाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कत आने लगी है। वो अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की जानकारी को अपनी जिंदगी के नाजुक पलों के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं। तू बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। क्रांति में किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, खासकर अगर वो कंफ्यूजन एक मदद की लाई हुई हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खामोश हो जा। भगत, तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू उस पीढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारे जो तेरा चेहरा देख देख कर जी रही हो। पंडित जी, अब ये बम ही इनकलाब लाके दिखाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे मैं क्या करता, मना कर दिया सबके सामने। सारी जेल देख रही थी, वो मुकदमा खुद ही लड़ेगा। पर उससे फायदा? अरे इन लोगों के फायदे और नुकसान भी समझ पाया है क्या? एक लाहौर भेजी, उसके घर, बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार बखला होती है पंडित जी। चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। सबको इन्फॉर्म करना होगा कि अंडरग्राउंड हो जाओ। बस अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना काम जारी रखना होगा। राजगुरु जी पंडित जी। तुम आज शाम को पुणे निकल रहे हो और ध्यान रखना तुम्हारी एक कैंटीन जैसी जवान थोड़ी कम चले। पटना, आगरा, झांसी, सहारनपुर तार कर दो कि गायब हो जाए, और लाहौर में सुखदेव को खबर कर दो कि गायब हो जाए। उसे पुलिस कुत्तों के सामान ढूंढ रही है। कहाँ गई आप लोगों की वो धमाकेदार योजनाएं? कहाँ गया वो HSRA का फैला हुआ नेटवर्क? कहाँ गई पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो अपने आप को समझदारी का इम्तिहान माना करते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जैकपाल मुखबिर बन गया है। कल लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ क्या? औरत के बाद दूसरा बच्चा था हमारा, बिगड़ गया था तो क्या? पर उससे फायदा? अरे लोग उसका क्या करेंगे, मुकदमा चलाएंगे। परसों रात आया था, पैर छू कर बोला कि औरत के लिए कोई संदेश है क्या, और आज उसके खुद के लिए संदेश भेजना पड़ेगा। मेरा संदेश तेरे लिए यही है भगत कि मैं पीछे नहीं रहा। जेल का फर्क था, तू दिल्ली में था, मैं लाहौर में, और मैंने सुना कि तेरे केस की कार्रवाई शुरू हो गई। इंसान का इश्क हमारे लिए किसी से कम नहीं है, इसलिए इंसान की जान ली ख्वाहिश का तो सवाल ही नहीं उठता। हम ये धमाका करके बतलाना चाहते हैं कि बैरों को सुनाने के लिए दिमाग की ही जरूरत होती है, और हमने उन लोगों को चेतावनी दी है जो इस रेस में अंधो समान दौड़ते चले जा रहे हैं। आने वाली गंभीर परिस्थितियों की चिंता किए बगैर हमारे हाथ में आज वो मशाल है जो कभी गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रजा खान, गैरिबल्डी और मजीनी के हाथों में थी। आप व्यक्ति की हत्या तो कर सकते हैं, मगर उसके विचारों की नहीं। फ्रांस में लेटर डी कैचेट और रशरैल के खौफनाक हाथ से कभी भी क्रांति को कुचल नहीं सके। साइबेरिया के खानों बेचकर जिंदगियां छीन ली गई, मगर उनके इरादे नहीं। और हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है। हमारे लिए इसका अर्थ है बदलाव, चेंज, और एक दिन ये जरूर आएगा। इतनी आगे गई उस शुभनिष्ठा की भविष्यवाणी किसके कानों में आज रची बसी रह गई है उसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी हमें कांग्रेस ने दिलवाई। उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था
वो मूवमेंट तो बस वक्त का बुलबुला था जो वक्त के साथ ही टूटा और ले गया अपने साथ खूनी गोली और बम धमाकों की आवाज। गलत कह रहे हो मार्कंड, गलत कह रहे हो। धमाकों की आवाज तो सन 1947 में अपने पूर्ण रूप में उठी थी और उसके साथ जुड़ गई थी उन हजारों बच्चे, बूढ़ों और औरतों की चीखें जो ये रो रो कर कह रही थी कि हमें नहीं चाहिए ये हिंदुस्तान, हमें नहीं चाहिए ये पाकिस्तान, हमें तो एक मुल्क चाहिए जिसकी जमीन पर हम खुली सांस ले सके। आज 18 वर्ष के बाद भी इन दोनों देशों के दिलों में एक ज्वालामुखी बल रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? किसको? पॉलिटिकल किलर्स। पर इसका क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल किलर्स मतलब राजनीतिक खूनी जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून कर दे। हाँ हाँ, झूठ नहीं कह रहा। कलशिव वर्मा, सुरेंद्र पांडे, महावीर सिंह, कुंदन लाल, विजय सहारनपुर में पकड़े गए। पंडित जी को इतला कर दो। मैं जगह आज ही छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखना क्योंकि कल दर्द और भगत का फैसला है। वतन की
मुझे तो इस हरामजादी सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं थी। तू सुन तो रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हमसे हमें कम से कम ये तो एहसास रहेगा कि वो जहाँ भी है वो जिंदा तो है। जैसे जीत के रहने का। और क्या? तू देखना एक दिन चाचा भतीजा इकट्ठे आएंगे और फिर जो इस घर में वैसाखी मनेंगे कि पूरा लाहौर गूंज उठेगा। वो ठीक है, यही आ चुका है लाहौर में। खत आया था उसका। सुखदेव ने तेरे लिए सत श्री अकाल भी लिखा है और लिखा है कि चिंता मत करना, भगत यहाँ ठीक है, खूब रसगुल्ले खाता है और भुट्टे मैं खिलाता रहता हूँ। लाल हो गया है खा खा के। और लिखा है कि जब जेल से छूट कर आएंगे तो ग्रंथी जी के पास झाड़ा लगवाने चलेंगे। वैसे ये झाड़े का क्या चक्कर है? मैं तो बस ये कह रही थी, ध्यान रखा करो। कल किसने देखी है? अगर आज की तो सोचनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैंने दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी, लेकिन जो जानती हूँ वो बस इतना कि कोई पकड़ा गया, उसको सजा हो रही है। उसका दोष क्या था ये नहीं जानती, उसने किया क्या था ये भी नहीं जानती, और ना ही जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कोई आए, लेकिन अगर वो नहीं भी आता तो उसमें भी उसका दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है अगर ना आना उसका धर्म है तो उसके धर्म की बात रखना मेरा धर्म है। मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, वो मेरे धर्म को चोट नहीं पहुंचाएगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि अच्छा खाना और अच्छा पहनना मेरा धर्म बन चुका है। रंग इश्क के कितने होते हैं ये न जाने पीर फकीर, ये तो जाने रांझा है कि हाँ, या के जाने उसकी रांझे ने मेरे वादा किया, मदहोश गुलाबी में जरा थोड़ा डाल बसंती, फिर पहनती उसको गोरिये थोड़ा बैठन दी के, मदरी को
तेरे कांधे का तस्वीर ले आऊंगा, ले आऊंगा मेरे इश्क की ये तासीर, गोरिये मेरे इश्क की ये तासीर। मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा नाम सुखदेव है और मेरा नाम हितेंद्र नाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला घोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आ गई हैंड्स अप। एक बार की तो मन हुआ कि पीछे की तरफ जाके बम फेंककर हैंड्स अप कर दूं, मगर फिर ख्याल आया तुम दोनों बम दोबारा मिलने का मौका भी कहाँ मिलेगा। अरे तुम सबको बम बनाना सिखाया है मैंने, हम बाप हैं तुम्हारे। हम बाप है दुनिया के। We are great, too great. We are idealists. We are superhumans. We are beyond human beings. पर हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी। हमें खुदा बन के दिखाना पड़ेगा ताकि कल को जमाना कहे कि क्या लोग थे यार, क्रांति के लिए अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों से कुचलकर आगे बढ़ गए। तो याद है सुखदेव? याद है। अरे याद कैसे नहीं होगा। बाजार में एक कैलेंडर लटका था जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनी थी। अपने राजू बाबू को पसंद आ गई, खरीदा, जाकर पार्टी ऑफिस की बिल्डिंग में लगा दिया। जब पंडित जी ने देखा तो बौखला उठे और बोले कैलेंडर निकालकर टुकड़े कर दिए। फिर राजगुरु बाबू आए और बिना उठे और बोले अरे मेरा कैलेंडर किसने बांटा? तो पंडित जी बोले मैंने बांटा। अरे पर क्यों बांटा? तो पंडित जी बोले या तो इन सब काम काजों में जा या क्रांति कर ले। तब राजगुरु बाबू ने एक ऐसी केचुली घुमाई और बोले तब पंडित जी क्या आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ देंगे? तो पंडित जी बोले फाड़ दूंगा। फिर राजगुरु बाबू बोलते हैं तो क्या आप ताजमहल को ही फाड़ देंगे? पंडित जी बोले फाड़ दूंगा। तब राजगुरु बाबू कहते हैं कि अरे पंडित जी इतनी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो, खूबसूरती से इतनी नफरत पालकर। वो वाकई खूबसूरत सवाल था। जब इटालवी क्रांति में मैज़िनी अपनी पहली हार के विद्रोह से पूरी तरह टूट चुका था, वो बार बार अपने खोए हुए साथियों को याद करके रोता था, लेकिन उसके प्रेमिका के एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि उसने आगे चलकर इतिहास को दिशा निर्देशन देना शुरू कर दिया। और हाँ सुखदेव, मैंने तुमसे उस लड़की के बारे में पूछा था क्योंकि वो मुझे आज भी याद आती है, और किसी को यादों में बसाना तो मेरा हक है, किसी को याद करना मेरा हक है। वो तो हम गुलाम मुल्क के नौजवान हैं जो इश्क जैसी पाको साफ चीज की आबो हवा हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन यकीनन अगले जन्म में मैं अपनी प्रेमिका को अपने आगोश में लिए उसके कांधे से सर टिका रहना चाहूंगा। चीज का इंतजार कर रहे हो सालो? तुम्हें क्या लगता है ऊपर से कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें चुरा के ले जाएगा? ये लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली कानपुर नहीं। साले को साले अंग्रेज अफसरों को नहीं मारेंगे, हुकूमत से टक्कर लेंगे। घुसेड़ते पूरा पूरा खाना इसकी नाक की जेल के अंदर। मैं भी देखता हूँ ये भूख हड़ताल कब तक चलती है। अरे नाम जानते हो मेरा? उसका नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है पंडित जी। वो हैवानियत पर उतरा है। उसने 25वीं पठान निकाले जो कि इनके सीने में चढ़ के इनकी नाक से खाना ठूस रहे हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का 50वां दिन था। ये हड़ताल नहीं रुकेगी, ये जंग नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है।
भगत शिव ने मक्खियां मारकर खाली भगत उसका सारा खाना बाहर आ गया। अजय ने मिर्चों वाला पानी पी लिया, उसके गले में नली नहीं जा रही। और यतीन्द्र के फेफड़ों में एक सेर दूध भर गया भगत, उसका बदन न कर रहा है। उसने दवा खाने से इनकार कर दिया है भगत, उसकी जुबान हिल रही है, उसकी नाड़ी जा रही है भगत, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास से मिटाया पंडित जी, क्या वो कुछ नहीं कर सकता? ये मत समझना कि इस एक यतीन्द्रनाथ दास की मौत से हिंदुस्तान का ये उमड़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये चलता रहेगा, ये दौर चलता रहेगा जब तक हम हासिल नहीं कर लेते आजादी। और फिर मोतीलाल नेहरू ने कहा था, सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस हैवानियत को मैं लानत भेजता हूँ, यतीन्द्रनाथ दास को कैसे भी बचाया जाए। तब जवाहरलाल नेहरू बोले, सर झुकाता हूँ शर्मिंदगी से इस हैवानियत के सामने, यतीन्द्रनाथ दास को रिहा किया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, आई स्पिट ऑन द करेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर who don't even know how to kill. Don't you forget the Britishers that the soul of this nation had enough from you. Now it is our turn to give the most precious thing we are having, and that is our lives. कल यतीन्द्र नहीं रहा, भगत के साथियों में से पहली मौत। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भगवती कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इस दिन के लिए ट्रेन किया था कि मैं तुम्हें एक एक्शन में बेचकर हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह पा लेना कहते हैं। लगवा दूंगा पूरे लाहौर को लस्सी मिलवा दूंगा। अरे मस्त नाच रहे, भंगड़ा चट्टा आई वैसाखी। मुझे आज भी याद है वो हड़ताल कैसे टूटी थी। वाकई क्या चरमरा गया था हुकूमत में, वाकई। और उसके बाद जापान, कनाडा, पोलैंड और अन्य देशों से हजारों चिट्ठियां आने लगी समर्थन के रूप में। लोग रेले के रेले बनाकर सड़कों पर उमड़ पड़े। अरे हुकूमत के खिलाफ तो प्रेस आग उगल रही थी। और तब भावुक होकर शिव वर्मा बोले, भाई आजकल तुम्हें नाम से बुलाने को जी नहीं चाहता। तो फिर क्या कहकर बुलाओगे? सरदार। और सरदार तुमको मालूम है इतिहास में इसका श्रेय हमेशा कांग्रेस को दिया जाएगा। मालूम है, लेकिन जब मैंने नारा कल जमादार के 8 साल के बच्ची को लगाते हुए सुना ना, मुझे मेरा श्रेय वहीं मिल गया। एक बात पूछूं सरदार? पूछो। तुम कभी महात्मा गांधी से मिले हो? हाँ, इकलौती याद है भगत। 8 साल का था तब भगत। गांधी जी लाहौर आए थे, उसके स्कूल में सभी बच्चे मचल मचल कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी वहीं खड़ी थी। तभी गांधी जी वहां से गुजरने ही वाले थे कि उन्होंने भगत को देखा, मुस्कुराए और बोले, सत श्री अकाल के साथ साथ वंदे मातरम भी कहा करो, हमारे देश को उसकी भी बहुत जरूरत है। मैं वहीं खड़ी थी। भगत अपनी नीली आंखों से उन्हें ताकता ही रह गया। मुझे मालूम नहीं शिव, महाभारत में ना कर्ण और कृष्ण का संबंध पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का टूट भक्त था, लेकिन लड़ा उनके खिलाफ, और खत्म भी पहले वही हुआ था। लेकिन यह बात अलग है कि कृष्ण भी उसके बाद सुखी नहीं रह पाए। मुझे नहीं मालूम कि मैं नास्तिक क्यों हूं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि नास्तिक होने के बावजूद मैं अपनी जेब में श्रीमद् भागवत गीता और विवेकानंद की जीवनी क्यों रखता हूं। लेकिन एक बात पक्की है कि हम इस हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद भारत नहीं देना चाहेंगे, जहां हमारी उम्रे गरीबी फैले, भेड़ियों का राज हो, कबूतरों का सहमापन हो। बल्कि हम देना चाहते हैं वो देश जहां उमंगे हो, जहां तिरंगे हो,
जहां भाईचारे का साम्राज्य रहे। तुम देखना, एक दिन हमारा इनकलाब जरूर आएगा, और ये इनकलाब कोई खून-आलूदा नहीं है, बल्कि इसे तो फूलों की पंखुड़ियों से पोस पोस कर पैदा किया गया है। खाना कैसा लग रहा है? अरे नाम शिवराम हरि राजगुरु। चार्ज सॉन्डर्स मर्डर केस। कब की बात है? 10 जनवरी 1930 की। कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तब मालूम पड़ा कि पकड़ लिया गया। किसी ने मुखबरी की थी? हाँ। किसने? मैंने। अपनी मुखबरी खुद ही? वो भला कैसे? वो गलती से एक आदमी को बता दिया था कि सॉन्डर्स को मैंने मारा है। एक आदमी को नहीं बेटा, पूरे पुणे शहर को बता दिया, और तो एक पिस्तौल पे दिखा दी। बोलो गलत है? गलत है, झूठ है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम जेल में हैं तो क्या बाहर की खबर नहीं रखते? पंडित जी ने कहा था ना, अपनी जुबान पे काबू रखना। हाँ, मच्छर बहुत थे यार, ठीक से सो नहीं पाता था, चलते फिरते एक ऊँघ सी लगी रहती थी, तो उसी के बीच कभी मुंह से निकल गया होगा। अरे व्हाट यार, आई हियर एंड दिस वेलकम। अरे वाह, जियो तुम्हारी अंग्रेजी। आ जाओ। बचा बवंडर ये कैसा सरकार नाचती, आज तो हुआ गजब है ये तो ज़ारो ज़ार नाचती। आज तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाचती, आज तो हुआ गजब है ये तो ज़ारो ज़ार नाचती। यार के बढ़ के दिल का हाल सरे बाजार नाचती, यार ने हंस के बोला नाचो वो 100 बार नाचती, यार ने हंस के बोला नाचो वो 100 बार नाचती। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई शुरू होती है। बहुत जल्दी शुरू नहीं होगी, अभी तो साल ही हुआ है पकड़े को। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का आरोप लगता है। How do you plead guilty or not guilty? सर, अगर हथियार जायज होते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? ये probably is good। अच्छा है, बता दिया, हम तो तबेला समझे थे। जैसे कि सबूत बतलाता है, असेंबली बम केस में भी आपके जेब में से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के पास अब हथियारों की कमी नहीं है। हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन मरियम से इंग्लिश टैंक बरामद हो गया होता। मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वादा आपने तोड़ा जनाब, आपने हमारी मांगे मान ली थी और उस पर अमल करने से तो आपने इनकार कर दिया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने के हालात में हैं। और इस बात का एहसास आपसे बेहतर यहाँ किसी और को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। मसलन आप लोगों के डिमांड पे गौर किया गया है। आपके खाने को लेकर की गई बुनियाद बेबुनियाद है। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से खाने ऊपर स्तर से नीचे हैं। उसे आप खाना कहते हैं। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को ब्रिटिश सरकार खाना कहती है। तो we really doubt the British taste of food। आप ऐसे लंदन में ना पोटैटोज विद कॉकरोच और चपाती विद फिश के नाम से सर्व करते होंगे जनाब। हिंदुस्तान में ये घटिया खाना ही कहलाता है। घटिया। आप लोगों की दूसरी डिमांड है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। आपसे निचले स्तर का काम न करा जाए। वैसे काम होता है, इसमें स्टैंडर्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर बिठाइए हमें अपनी बग्दी में और खुद थामे घोड़े के लगाम। अपनी मेम साहिबा को बोलिए, अपनी पतली मील आवाज में कहे, हटो हटो मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। काम के स्टैंडर्ड्स का फर्क मालूम पड़ जाएगा आपको। और फिर सिंह, आप लोगों की तीसरी डिमांड है कि आपको किताबों और लिखने का सामान बेरोक टोक चाहिए।
साथ में हर एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पे मुहैया करा जाए, नहाने को अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। मिस्टर सिंह, आपको क्या लगता है, आप किसी हिल स्टेशन पे बैठे हुए और कैजुअल लीव पे हैं? आपको क्या लगता है सर, आप खुद तो हमारे मुल्क में ऐसे चोरी छुपे घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग किसी मैटरनिटी लीव पर आए हैं? I shall not tolerate this bloody nonsense again. Next time I shall charge you with the contempt of court. My lords, I want to call Mr. Farindranath Ghosh to give his testimony to this case. Proceed. Mr. Farindranath Ghosh, can you tell how you are related to this case? मेरा नाम फरिंद्रनाथ घोष है और मैं इनके साथ फिरोज कोटला की मीटिंग से बम फैक्ट्री तक था। आपने नजायज बमों की फैक्ट्री लगाई? यस। आपने इसमें सहयोग दिया? यस। योर विटनेस? फैक्ट्रीज हमने लगाई थी। हाँ। किसने? करीब सबने। लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। इतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम में भी काम चल जाता है। अरे लेकिन अगर आप गन कॉटन मेरठ से खरीदे। गन कॉटन कलकत्ता में मिलता है मिस्टर। लेकिन सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे अपने घर पे भी बना सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। अच्छा, और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। अरे प्लास्टिक के खोल में आप बम बना सकते हैं मिस्टर घोष। बम हमेशा मेटल के खोल में बनता है मिस्टर। अरे पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर घोष। आज ये दिन दरदास जिंदा नहीं है, अगर होते तो बताते कि इस आदमी को पटाखा तक बनाने नहीं आता। क्या बोला? पटाखा? अरे पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट मीटर 70%, सल्फर 15% और उसके बाद कार्बन 10% चारकोल की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद उसको एक घर में काम आने किर्ची में भरे और एक मेटल की खोल के अंदर डाले। वो बेवकूफ बम बनाने की सारी विधि बच चुका है पंडित जी। जर्नलिस्ट से भरी अदालत में हिंदुस्तान के अखबार के हर फ्रंट पेज पे बम बनाने की विधि छपी है तफसील से। अब तक तो घर घर में पुलिस उद्योग लग चुका होगा। You will have to follow the rules and regulations of the courtroom, Mr. Singh। आप लोग यहाँ हथकड़ियों में बैठेंगे और कार्यवाही की शुरुआत में गानों के सेशंस मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, जहाँ तक हथकड़ियों का सवाल है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम, तो हाथ हमारे और चाह भी हमारी है, और पॉलिटिकल प्रिजनर और टेररिस्ट के बीच में फर्क करने की जिम्मेदारी आपकी है। और जहाँ तक बात आपने गानों की तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब धान करता है, तब भी बजता जब होली मनाई जाती है और जब चौका लीपा जाता है। आप कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लीप कर तो देखिए, आप इसे गाने पे मजबूर हो जाएंगे। सिंह, आप अपने आप को काला क्यों कहते हैं? आप तो भूरे हैं। आप अपने आप को गोरे नहीं कहते हैं, आप तो गुलाबी है, गुलाबी। काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह, आप लोग अदालत में से काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के फैसले इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, ना तो इनको सुनने की कोई ख्वाहिश है और ना ही सब्र। आपको मालूम है मुकदमा की गैरमौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। जी, द ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वाइसरॉय इरविन के स्नेह शगुफे का मेरे को मालूम है, और जुडिशरी के इतिहास में शायद पहला मुकदमा होगा जो स्पेशल ऑर्डर से कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। रिस्पेक्टेड वॉचमैन, में तेजी से बात कीजिए। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी ने उनका सम्मान से लेते हैं। अच्छा, हमें पता है आपके इस गांधी पैक्ट के बारे में, जिसने श्री गांधी को शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया और साथ ही भारतीय इंडस्ट्री की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश पर 15% और नॉन ब्रिटिश पर 20% टैक्स घटाया है, जो कि सिर्फ यहाँ के बजरुआ वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करता है। ना तो इसका फायदा मजदूरों को, ना ही किसानों पर से लगान कम हुआ, ऊपर से ऊपर आपने नमक पे से भी टैक्स हटाया नहीं है। और राजनीतिक बंदियों का चुरा गया है कि आपके मिस्टर गांधी ये नहीं जानते कि 1915 के गदर पार्टी के बंदी आज भी जेलों में बंद हैं। मार्शल लोग के बंदी आज भी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। देवगढ़ को गोली, महुआ मसाल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एक को भी नहीं छोड़ा गया है। लखनऊ, कलकत्ता, बंबई में सालों से चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपने बच्चों और पतियों को छोड़कर भागी हुई हैं और कई ही फांसी की बात हो रहे हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में गांधी पैक्ट? बताइए। Order done।
नहीं बोल पाया था वो गांधी विद बैक, कुछ नहीं बोल पाए थे ये देश के सर्वे सर्वा, कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सेल्फ स्टाइल लीडर्स। उन्होंने अदालत आना ही बंद कर दिया था, शायद सरकार चाहती यही थी। और फिर इस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। मैं तुम्हारा नाम भूल गया। मैंने कभी बताया ही नहीं था। कानपुर से मुझसे मिलने आए हो? जी हाँ, जैसे सिर्फ दत्त साहब से मिलने दिल्ली गया था। वो बात 1965 की थी, आज 1994 चल रहा है। इस सदी की बात में आज किसका इंटरेस्ट जाग गया? जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं, और आज जब जाग गया है तो उनमें से सिर्फ आप बचे हैं। बहरहाल मैं आपको यही बतलाने आया हूँ कि 1994 इस मुल्क को हम जैसों की देन है, उसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो उस वक्त अपने आप को उस इंसान की तूफानी रफ्तार से बचा नहीं पाए थे, और शायद उन्होंने उसकी शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का सपना देख लिया था, लेकिन वो उसके साथ दौड़ नहीं पाए थे। उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। उनमें से कुछ थक गए तो कुछ फिसल गए। वो बीच में ही गायब होकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हम आज 47 साल बाद भी बीच रास्ते में ही भटक रहे हैं। मेरे पास मेरा ताम्रपत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। मैं आज मर्सिडीज में आया अपने एयर कंडीशन बंगले से निकलकर। मेरे सारे नाती पोते ऑनरी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी इस शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है। मिल रही सुविधाओं को इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? ये बात आप काश उसमें भी बोल पाए। यहाँ चुनाव आता है, उसने कुछ और चुना, तुमने कुछ और। क्यों 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 मैं वो नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमारा चुनाव है और ये हमने चुना है, और अगर हमारे इस आंदोलन से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और कुछ नहीं होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए थे तुम सरदार भगत सिंह। आज हिंदुस्तान तुम्हें सावन के कैलेंडर पर याद रखता है। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं था। कल हमारा फैसला है, और मजे की बात तो ये है कि हमें पहले से पता है कल क्या होने वाला है। कल अदालत में मेरा इनकम टैक्स का मुकदमा था। कोर्ट रूम में मेरी टांगें थर-थर कांप रही थी। अपनी शिफ्ट की गर्दन में तो पैडिल लगानी पड़ेगी, उसकी गर्दन तो बंदे में पिट्टी नहीं आएगी। अबे तेरी गर्दन नहीं है दिया सलाई। और जहाँ तक सवाल है हमारे भगत का, इसके लिए तो पूरा का पूरा गड्ढा खुदवाना पड़ेगा। तब कहीं जाके इसका गड्ढा टिक पाएगा। अबे यार, तू आदमी है या कुतुब मीनार? पंडित जी से भी क्या यही कहते हो? अरे नहीं नहीं, किसकी मजाल इस मौजर के रहते पंडित के जिस्म को छूटे। मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगा भगत, मगर तुम लोगों की याद बहुत आती है। कल मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को देखकर बोला कि ग्रैंडपा, who is this funny naked man with such a huge mustache on his face? Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक तथ्य था और ये वक्त भी एक तथ्य है। तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। सरदार के मुकदमे के दौरान अपने पर्वती भाई लाहौर में बम बनाते हुए मारे गए। किसे मालूम है? काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसे मालूम है? और किसे मालूम है कि कानपुर में रह रहे इस बूढ़े शिव वर्मा के हाथ उस इंसान के हाथ में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला,
हाल तेरा ये बोला माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे बसंती चोला। आज भी जिंदा हूं। इस आजाद भारत का सपना वो देखा करता था। सुकून की सांसें होंगी, उमंगें होंगी, भूख प्यास नहीं होगी, चीख पुकार नहीं होगी। आज वाकई कहीं चीख पुकार नहीं, हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ वीराना है। शायद यही एक संकेत है आने वाले तूफान का, आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखते थे। आज वो कोड़ों की चोट का एहसास भी जा चुका है क्योंकि कोड़े मारने वालों के पास ये ताकत है कि वो दूर बैठे भी कोड़े बरसा सकते हैं। वो गोरों का राज तो उस गोरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया, लेकिन वही गोरों का राज आज किसी दूसरे मुल्क से वापस लौट रहा है। बहरहाल उसने कहा था, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक जाओगे तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस रातों में कभी कभी उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखता हूँ ना, तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, क्या यही था वो आजाद भारत जिसका तसव्वुर तुमने किया था? इलाही जिस तसव्वुर को कभी आँखों से देखा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए गर्दन को भेजा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर मौत झेली थी, इलाही क्या कभी सोचा था, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तसव्वुर से मुझेगा कभी ऐसा भी हिंदुस्तान होगा। वतन की आबरू का पास लेकिन कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमृता है ते मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हां। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और मैं फनिंद्रनाथ घोष का रोल प्ले कर रहा था। Good afternoon everyone, my name is Navroop and I was playing the role of Police Sergeant Banerjee and the judge. मेरा नाम करमजोत सिंह थे, मैं सरदार डिविजन का रोल प्ले कर रहा हूं। हेलो, मेरा नाम देव शर्मा है, मैं एडवोकेट था, गनर था। मेरा नाम निखिल शर्मा, मैंने अशफाक उल्ला खान का रोल प्ले करा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आर्यन केड़े, मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ और मैंने हितेंद्रनाथ दास और राम साहब इसमें का रोल प्ले किया था। मैंने चंद्रशेखर आजाद का रोल प्ले किया था। नमस्ते, मेरा नाम सुनील अरोड़ा है और मैंने मुइन
और जज का रोल प्ले किया था। मेरा नाम अनमोल शर्मा है तो मैं बटुकेश्वर दत्त का रोल प्ले किया। आप सबको नमस्ते, मेरा नाम शुक्र भील है, मैं BCA फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने मार्केट त्रिवेदी का रोल प्ले किया। राम राम भाई सभी को, मैंने जयदेव कपूर का रोल प्ले किया और मेरा नाम राहुल रियाड़ है। राम राम सभी को, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैंने जय गोपाल का और खान बहादुर पुलिस का रोल प्ले किया। I'm currently studying in BA second year and मैंने भगत सिंह के फियांसे का रोल प्ले किया था। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विकास मोदी है, मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने भगवती चरण बोहरा का रोल प्ले किया था। मेरा नाम युवराज है, I played सुखदेव थापर। मेरा नाम सुशांक है, मैं BCA फर्स्ट ईयर से हूँ और मैंने शिवराम हरी राजपूत का रोल प्ले किया। मेरा नाम मनीष है और मैं BA सेकेंड ईयर से हूँ और मैंने भगत सिंह का किरदार निभाया। Wow, what a miraculous performance. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनिधि है और मैं MA फाइनल ईयर से हूँ और मैंने लीड सिंगर का रोल प्ले किया। Good afternoon everyone, I am Isha and I was playing background music. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम आज बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे थे, सो थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। एंड माय नेम इज जेशन एंड ही इज माय पार्टनर सायन कुंबा एंड ही इज करेंटली परस्यूइंग BA सेकेंड ईयर एंड वी आर एक्चुअली फ्रॉम द क्रॉसरोड बैंक। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ BA ਥਰਡ ਤੋਂ ਜੱਗਾ।